Good evening, everyone. Am I audible? Only few are there. So let us continue because we can wait for others to join later on. We can discuss till then. The screen is visible to all of you guys? Yes, ma'am. Okay, nice. So how was your exam? It was nice. Yesterday one. Many students have got out of and yeah, that was nice. And कुछ का थोड़ा कम है, but ठीक है अच्छा. Overall, it was good. Yes, baby. Okay, unit number. Okay, let me just attach some other page over here. Lecture. Ma'am, Friday's lecture you have not put, no? Okay, हाँ शायद क्योंकि वो वीकेंड आ गया ना एंड इट मतलब रह गया. ठीक है, मैं करती हूँ आज. हाँ Ma'am, Thursday also I think so. Thursday. अभी भी नहीं हुआ है क्या? No, second order PD, that is second order. Okay, second से कुछ हुआ ही नहीं है. No. Okay, okay, fine. And one thing I can also do that I will also upload that on Eclipse. अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे देख लो. क्योंकि now I have got the ID and all, so now it will be like convenient for me. Okay, fine. मुझे लगा होगा फिर शायद मैं Eclipse पे करूँगी और फिर रह गया. ठीक है. Remind me someday if I forgot because ना everything is going on. फिर वो कॉलेज का भी सब कुछ साथ में है ना तो फिर वो रह जाता है. ठीक है. तो आप लोग मुझे दूसरे दिन रिमाइंड कर सकते हो अगर नहीं हुआ तो. You can message me also. तो फिर वो याद रहेगा तो फिर I will do. ठीक है. So now in the last lecture we were discussing the canonical form and I think we are done with the canonical form of kiska hyperbolic equation ka. Fine. So today we are going to start the canonical form for which one? The other one, that is which पार्शियल मतलब तीनों की डिस्कस करेंगे हम लोगों ने. हाइपरबोलिक हमारा हो गया है. सो इट मींस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर द पैराबोलिक एंड इलिप्टिक. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट टुडे फॉर पैराबोलिक एंड देन we will go for some other one. Fine. So parabolic we are going to start today. First of all we should exam में I guess ऐसा आएगा या नहीं आएगा that I'm not sure. That you have to first recognize the equation whether it is parabola hyperbola. Fine. So today we are going to take the second one. Since यहाँ पे तो हम मतलब since I'm mentioning in the heading that which we are going to do, so that is easy for us to do. But even though in examination also you can find it out easily, there will not be any problem. So reducing a parabolic equation to its canonical form. Okay. And keep in mind that जो भी उसका standard form है, we have discussed on hyperbolic का क्या था, del square z upon del u del v like this way. So वो standard form आपका याद होना चाहिए. Right hand side में कोई भी function आने दो, left hand side में you should get the same thing. तो अगर आपको मैं 3-4 बाद में जब ये तीनों हो जाएंगे, then if I will give you some canonical forms, so you must be able to recognize that which canonical form belongs to which PD. Whether it is hyperbolic or parabolic or this one. How? Because every hyperbolic, whether it is parabolic or this elliptic, they have a different kind of canonical form and which is standard one. So you can easily identify later on as well to its canonical form. Okay. So here is today's topic. Let's discuss this. Procedure almost same ही होगा, but इसका जो standard form है वो आप याद रख दो. तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा यू स्क्वायर. देखो वहां पे क्या था, हाइपरबोलिक में यू एंड वी दोनों था, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा यू होगा. ओके, यू स्क्वायर. एंड हियर दिस इज फाइव बोलो या फिर एफ बोलो, एनीथिंग यू कैन टेक फाइव फंक्शन ऑफ समथिंग. सो इफ आई एम टेकिंग फाइव इट मींस फंक्शन ऑफ यू वी जेड del u sorry del z upon del u and del z upon del v. It is del z upon del u and del z upon del v. Here it is. This one, or the other form is also there. Del square z, deba square z upon deba v square. See, what is the difference? यहाँ पे जो hyperbolic था, in that you had deba square z upon deba u deba v in the left hand side.
ओके, देयर यू एंड वी था, दोनों था, मतलब ऑर्डर डेफिनेटली उसका 2 ही रहेगा ऑल टुगेदर. सो यहाँ पे क्या है, यू स्क्वायर एंड वी स्क्वायर, मतलब या तो सिर्फ यू का ही टर्म होगा या फिर वी का ही टर्म होगा, दोनों साथ में नहीं मिलेंगे आपको. अगर दोनों साथ में आ रहे हैं, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट हाइपरबोलिक इक्वेशन. अगर कोई एक आ रहा है, इधर यू और वी, तो इट मीन्स इट इज पैराबोलिक. ओके, so this is equal to, again right hand side the same thing will be there, u v and z del by z upon del by u del by z upon del by v. Here it is. Okay, so this is your standard form. That's it. You just remember the standard form and you are good to go. तो आप लोग को normal equation दिया रहेगा, तो वो equation है यहाँ पे reduce reduce r plus 2s plus t equal to 0 to its canonical form. ओके, तो हियर इट इज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू सॉल्व दिस, पहले हम लोग तो इसको दिखाना पड़ेगा कि ये है कौन सा, क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, बट वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज. सो कैपिटल आर इक्वल टू 1, कैपिटल एस इक्वल टू 2, दिस इज स्मॉल एस, एंड कैपिटल टी इक्वल टू 1. सो एस स्क्वायर माइनस 4rt will give you, s square is 4, 2 ka square is 4, and 4 1 1. So what you will get, you will get 4 minus 4 0 definitely. So it means this equation is of parabolic. Parabolic. Okay, so this is parabolic equation. So what next step is there? To find the equation in terms of lambda, quadratic equation है ना, जिससे आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मिलते हैं या इक्वेशंस मिलती हैं. सो क्या होता है, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0. ओके, दिस विल गिव यू, आर की जगह तो 1 है, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड दिस इज नथिंग बट लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर? So if this is equal to 0, so it means lambda equal to -1 and -1. It means you are having two equal roots. Parabolic का वैसे भी आपको पता होना चाहिए, without solving that you will have two equal roots. तो अगर दो equal roots है तो इसका मतलब आपको characteristic equation सिर्फ 1 मिलेगी. Okay, so now मैं characteristic equation find करती हूँ उसकी. What will be that? dy upon dx plus lambda equal to 0 होता है. So this would imply dy upon dx minus 1 equal to 0. So after solving this, dy minus dx equal to 0. So y minus x equal to, this is what? इंटीग्रेटिंग, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, y माइनस एक्स इक्वल टू c1. ओके, सो व्हाट वाज माय टारगेट, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको जो c1 हम जिसको कंसिडर करते हैं, दिस आई कैन टेक एज u. तो लेट u इक्वल टू, ये यहाँ तक प्रोसेस सेम है, u इक्वल टू क्या होगा, x, y माइनस एक्स, सॉरी. सो यहाँ पे क्या है ना, v आप, क्योंकि सिंस आपको एक ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती है, यू हैव टू कंसिडर v इक्वल टू सम अदर फंक्शन, मतलब y प्लस एक्स भी कर सकते हो, एज आई टोल्ड यू. ऐसा हाइपरबोलिक में भी हमें कुछ मिला था, एक ही रूट मिला था वहां पे भी, तो सिमिलरली वी हैव डिस्कस आल्सो देयर. तो व्हाट यू विल हैव, सपोज यहाँ पे y ले लो अभी, तो इट इज अप टू यू, तुम x, उस वाले इक्वेशन में मैंने x लिया था, तो यहाँ पे मैं y ले रही हूँ. तो देखना है कि, क्योंकि मेरा मेन टारगेट है, जो मेरा जेकोबी है वो क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए. ठीक है, तो दैट बिकॉज ये दोनों जो इक्वेशन में ले रही हूँ यू एंड वी शुड बी इंडिपेंडेंट. सो अगर मैं इसका जेकोबी फाइंड करूं टू वेरीफाई वेदर दीज आर इंडिपेंडेंट और नॉट, तो यू वी इक्वल टू व्हाट विल हैपन, del u upon del x, del u upon del y, del v upon del x, del v upon del y. दिस इज इक्वल टू del u upon del x. u का x के रिस्पेक्ट में -1 आएगा, u का y के रिस्पेक्ट में 1 आएगा. ओके, उसके बाद है v का x के रिस्पेक्ट में कितना है, 0, क्योंकि v का x का टर्म ही नहीं है, एंड y के रिस्पेक्ट में 1 है. सो यू आर गेटिंग -1. इट मीन्स इट इज नॉन जीरो. नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है, मतलब उसका जेकोबी, तो इट मीन्स व्हाट, u एंड v आर इंडिपेंडेंट.
पैराबोला और हाइपरबोला ऑलमोस्ट सेम होता है, इलिप्टिकल थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब प्रोसीजर तो सेम है बट हाँ थोड़ा आपको उसमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो इस वाले को हम जल्दी से कर लेंगे, साथ में ही आप लोग भी कर लो। अच्छा, इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क, टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क? नोबडी नोज। देन इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालते हैं। पी और क्यू तो निकालेंगे ही, आर एस टी का कैसा होगा वो डिपेंड करेगा कि क्या क्या हमें गिवन इक्वेशन में है। हाँ, तो इस इक्वेशन में तो सब कुछ है, आर भी है, एस भी है और टी भी है। इट मींस आई हैव टू लाइक कैलकुलेट पी क्यू आर एस टी एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स fasten your belts because that is a little bit lengthy. So ये क्या हो जाएगा? डेबा जेड अपॉन डेबा एक्स इक्वल टू, इसको कैसे लिखते हैं पी को? लाइक वी कैन ब्रेक इट इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। तो डेबा जेड अपॉन डेबा यू इंटू डेबा यू अपॉन डेबा एक्स प्लस डेबा जेड अपॉन डेबा वी इंटू डेबा वी अपॉन डेबा एक्स। ओके, दिस इज द इक्वेशन। सो नाउ आई विल रिप्लेस जो भी वैल्यूज मेरे पास है, डेबा जेड अपॉन डेबा यू, ओके, दैट आई डोंट नो, and del by u upon del by x. U is here, it is given, and del by x, it will give you -1 plus del by z upon del by v into del by v upon del by x. Actually, this v is looking like theta. Let me change this because जो student online नहीं होते हैं, मतलब जो live session attend नहीं करते, they will consider this theta definitely. So dv upon dx because there is no terms of x in v. Okay, तो फिर ये 0 हो जाएगा. So it means what you are having now, you are having only minus of deba z upon deba u. This is the term you have. So आपका deba z upon deba x आया है minus deba z upon deba, एक सेकेंड ना, लेट मी एडमिट द स्टूडेंट। हाँ, तो ये है डेबा जेड अपॉन डेबा यू आया है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू फाइंड ओनली द वैल्यू ऑफ डेबा अपॉन डेबा एक्स, तो व्हाट यू कैन राइट माइनस डेबा अपॉन डेबा यू, दैट लेटर ऑन यू आर गोइंग टू यूज। सो लेट्स नेम दिस इक्वेशन नंबर 1 और समथिंग। 2 दे देते हैं, 1 हम नेम देते हैं जो हमारी इक्वेशन है। व्हाट इज दैट इक्वेशन? दैट इक्वेशन वाज दिस वन, r plus 2s plus t equal to 0. Let's call it equation number 1. Okay, name it equation 1 and this is equation number 2. Now similarly q के लिए, तो इससे क्या होगा ना, जितना भी हम क्लास में कर रहे हैं अगर वो भी आप साइमल्टेनियसली कर रहे हो तो यू आर लाइक गुड टू गो। अलग से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव, सॉरी, parabolic and hyperbolic both are having almost same procedure to solve. Okay, so q equal to क्या हो जाएगा? डेबा z upon डेबा y, this will imply deba z upon deba u into deba u upon deba y plus deba z upon deba v into deba v upon deba y. Okay, is it so? Yeah. So now deba z upon deba u upon deba y, deba u. See, u is y minus x, so deba u upon deba y is 1 and deba v upon deba y is 1 as well. So 1 plus deba z upon deba v. Here it is. Okay, so now this is equal to, okay, fine, this you can if you want directly I can write the value of deba upon deba y is deba upon deba u plus deba upon deba v, call it equation number 2. okay, q आ गया। अभी r s t, तो r equal to क्या होता है? deba square z upon deba x square, so this can be written as deba upon deba x, deba z upon deba x. So now this can be written as deba upon deba x की वैल्यू थी माइनस डेबा अपॉन डेबा यू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यू कैन सी माइनस डेबा अपॉन डेबा यू and minus deba z upon deba u. Here it is. Okay, this is the value of r. Clear? So now minus minus तो plus हो जाएगा, तो this is quite simple. What you will get? Deba square z upon deba u square. Only this much you will get. Okay, so here it is. r की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए? s की वैल्यू भी चाहिए। s इक्वल टू क्या होता है? डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा यू डेब,
sorry, deb by x, deb by y. Both the terms are there na, in S. And this equation, this will be 4 because this is 3. 2 is 2 times. Okay, 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 fine. Let me change the order. It is 2, it is 3, it is 4. Okay. So now deb square z upon deb u, sorry, deb x y, I'm writing u and v. deb x deb y. ठीक है, तो x पहले लिखो, y बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट इज अप टू यू कैसे भी लिखो. तो डेबा अपॉन डेबा, इसको सेपरेट कर देते हैं, डेबा z एंड डेबा z अपॉन डेबा y, ऐसे कर लो. तो डेबा अपॉन डेबा x क्या है आपका? See, here it is. From 2 you can write minus deba upon deba u. It is minus deba upon deba u. So deba z upon deba y. Where is deba z upon deba y? Here it is. See, from this I can write deba z upon deba u plus deba z upon deba v, I guess, right now. From 2 and 3 I can write over here for the further. So now what else is there? नाउ अभी मुझे क्या करना है, s की वैल्यू ये है, तो आई थिंक डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके हो जाएगा. हाँ, तो दिस विल गिव मी माइनस डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा यू स्क्वायर माइनस डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा यू डेबा वी. हियर इट इज. ओके, दिस विल हैपन, तो लेट इट बी. इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5. नाउ द लास्ट टर्म इज रिमेनिंग, दैट इज t. So t would be deba square z upon deba y square. So this is nothing but deba y, deba z upon deba y again. So this is deba upon deba y is nothing but from 2 I can write this. From 3, sorry, deba upon deba u plus deba upon deba v. That this I can write deba upon deba u deba upon deba v. और यहाँ पे z में सिर्फ z आ जाएगा और कुछ भी नहीं, बाकी सेम ही आएगा. ओके, सो दिस इज हाँ, तो कैसे करेंगे इसको? नथिंग, वी हैव टू मल्टीप्लाई. ये अगर फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा यू स्क्वायर, डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा यू डेबा वी प्लस डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा वी डेबा यू, ऑल्दो सेम ही बात है, एंड डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा वी स्क्वायर. सो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही टर्म है. तो व्हाट वी विल डू, almost mean they are rather same terms, not almost, exactly same. So this I can write 2 deba square z upon deba u deba v plus deba square z upon deba v square. It is t. Okay, t मिल गया, r मिल गया, s मिल गया, everything I have got. Now from equation number 1, क्या था equation number 1? Tell me. Equation 1, I think r plus 2s plus t equal to 0 था ना, पक्का? देखो, नहीं मतलब मुझे देखना पड़ेगा ऊपर जाके. Nobody is going to reply. हाँ, r plus 2s plus t. Okay, so ये था. तो इसका मतलब है I will have to replace the value of rst over here in this equation. So what was r? r था आपका डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा u स्क्वायर. इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 6. तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, putting the values of rst from किसमें से? 4, 5 and 6. And 6. Okay, so I'll replace all the values over here. So r की वैल्यू तो थी डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा u स्क्वायर, यही था गेस, है ना, प्लस 2 इंटू s का वैल्यू क्या था? s का वैल्यू माइनस डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा u स्क्वायर माइनस डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा u डेबा v. ओके, माइनस डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा u स्क्वायर. ओके, यहाँ पे भी माइनस था, माइनस डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा u डेबा v. हियर इट इज. उसके बाद क्या है? आर एस टी. टी तो हम यहीं से कॉपी कर सकते हैं, डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा u स्क्वायर प्लस 2 डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा u डेबा v plus deba square z upon deba v square. This is nothing but equal to 0. So now
अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा यू स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, है ना? दिस विल बिकम माइनस डेबा स्क्वायर जेड, सॉरी, माइनस टू डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा यू स्क्वायर, माइनस टू डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा वी डेबा यू। थीटा क्यों बन जाता है हमेशा? ओके, माइनस डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा यू स्क्वायर, प्लस डेबा स्क्वायर जेड, टू डेबा स्क्वायर जेड डेबा यू डेबा वी, plus deba square z upon deba v square equal to 0. Okay, so some terms will get cancelled over here, so let me use some other color for that cancellation. Deba square z upon deba u square से ये दो, हाँ ये प्लस था ना, एक सेकेंड, बीच में मेरा कुछ मिसिंग है क्या? दिस वन वाज प्लस ना, ये मैंने माइनस क्यों किया? दिस वन वाज प्लस नॉट माइनस, है ना? ये प्लस है, सो क्या हो जाएगा, डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा यू स्क्वायर एंड डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा स्क्वायर, टू हो गया एंड ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यूवी वाला यूवी से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस वाज वेरी लाइक नाइस आंसर आई हैव गॉट, वेरी स्मॉल एज वेल। तो देखो डेबा स्क्वायर जेड अपॉन क्या हो जाएगा, डेबा वी स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़ी And थी। after first term, this is minus, that will be plus, no? That is deba square z upon deba u square plus is there. So here it is minus. where the second ना, second term I have put minus, third भी minus ही किया है। अब क्या बोल रहे हो, कौन सा वाला? Means this only in cancellation one. First is this, deba square z upon deba u square. Here it is, instead of minus, it should be plus, no? this one second, Yes. how it is plus Ma'am, here? here it is, this is plus sign, no? See, Before this plus step. 2 minus this one, so minus 2 Okay, okay, delta this is, yeah, okay, here it is minus. Okay, got it, ma'am. got it ना? हाँ हाँ Yes, ठीक yes, है, ma'am. because inside that both the terms are in negative ना, that's why। ठीक है, okay, so you have got this one and you can compare it, just you must have written it on your notebooks, so you can compare with the standard form। left hand side में मैंने क्या बोला था, either you will get deba square z upon deba u square or you will get deba square z upon deba v square, and on RHS you will get some terms of z u v, deba z upon deba u, deba z upon deba v, and depending on क्या आपको मतलब कौन सा टर्म मिल रहा है ना? So 0 can always be considered as another function because constant तो मिल ही सकते हैं, but क्योंकि 0 तो मतलब 0 is a function, it can be considered as the function of anything, तो 0 या फिर कोई नंबर मिला तो भी सही है, और अगर वेरिएबल मिले तो आपको वेरिएबल u v z and deba z upon deba u and deba z upon deba v के फॉर्म में ही मिलेंगे। Is that clear or not? है ना? So this was the equation, because only the one question we are done with, ये तो थोड़ा सिंपल था, तो one more question we will take on the parabolic because दो भी एक उससे हो गए तो sufficient है, फिर आप लोग कर सकोगे। ओके, तो चलो one more question we will solve, and this you first you solve this and later on definitely I will discuss। So what is the question? Let me see. Yes, here it is। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस फॉर्म, डेफिनेटली सिंस हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्या है, बट ये थोड़ा सा लेंदी होगा ऑब्वियसली, 2xy(s). Here it is, y square x p minus x square upon y ये हो जाएगा p minus x square, oh this is q, no? एक सेकेंड, हाँ, here it is। So irrespective of the other terms, I just need to focus on RST के coefficients, okay? So solution में क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल R इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल r, तो कैपिटल R होगा मेरा y स्क्वायर, ओके,
and RS. Capital S would be 2xy negative of, and RST. T would be x square. So first of all, find which type of term this is, like whether it is parabolic or hyperbolic, and then u और v का मुझे वैल्यू फाइंड करके बताओ, क्योंकि एक ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी. सो वहां तक आप बताओ u और v को मैं क्या लूं, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे. So what you have got? Tell me. नहीं आएगा किसी का भी, ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब इतने बार हम सेम ही कर रहे हैं ना, तो यू शुड नो बाय नाउ व्हाट इज द आंसर. ये अटेंडेंस क्या 12 इतने ही है आप लोगों के? बाकी somebody unmute yourself and please communicate. I just wanted to know this attendance is like that one only, और या फिर पीडी में एक कुछ स्पेशल बात है कि बच्चे लोग कम आते हैं, या समझ नहीं आ रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? Some of the girl who reply always, I don't know her name, please reply this time as well. Ma'am, हाँ प्रीतल, या प्रीतल, say please. Ma'am, every time it is like the average, as I said, it is 17, 18, but I don't know this time why so less. This time means in this lecture or like No, Term like two? after first term. Okay. I think students are have become more confident than they can do. Maybe they must be busy in their work or something. Yeah, because most of the students are like working now, so that's why. But it is okay. Yeah. But if some improvements like can be done from our side, so your suggestions are most welcome, because definitely if you are not getting something or Yes, you ma'am. want, Like means for me also sometimes like 1.5 hour from between I have to like it misses out something, or that is why I always tell to put the PDF so that whatever is missed out I can just recover it. okay, later on you can resume. Yeah, fine, Okay. surely. Because I can also understand many of you are working or something else is going on, definitely. So that is okay. Later on you can go through that whole syllabus. Okay. Yeah. Okay, very nice. But others also, yeah, but if you people have some problem like kuch nahi samajh aa raha and this and that, so feel free to communicate anytime. Okay. I hope ki that the lectures are going very smooth and everybody is getting whatever we are covering during the lecture. So if there will be some problem, you can communicate frankly, no issue. Okay. चलो फिर करते हैं. अभी कल का क्या सीन है? मतलब कल ईद है, बट वो तो मॉर्निंग में होता है ना, ईद का फंक्शन, आई गेस. तो कल if I will put lecture some, so you people will be there or not? Since some are working in school, so like they are having holiday, like from today onwards we have holiday. Yeah, so no that will issue. be good for you. Like in vacations, you can attend properly, na? But Like, others, those who are working beside school and colleges now, we don't know about them. yeah, but today is holiday. That's why I was thinking that most of the student can attend ना, क्योंकि छुट्टी है तो सब लोग दिन भर घर पे रहेंगे, तो शाम को थोड़ा वो टाइम निकाल सकते हैं, like that way. क्योंकि थिंग इज दैट कि लेटर माय कॉलेज इज आल्सो गेटिंग लाइक, मतलब इसके बाद वी आर आल्सो हैविंग वेकेशंस, समर वेकेशन, तो आई विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट द लेक्चर्स इन द 3rd and 4th वीक ऑफ मे. सो दैट टाइम आई एम आल्सो आउट ऑफ स्टेशन. दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि वहां तक थोड़ा बहुत भी सिलेबस कवर हो जाएगा, आधा तो, आधा मतलब 70%, तो दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस. बट एनीवे, टुडे आई विल पुट द लिंक ओवर देयर
तो आई होप दैट विल बी ओके विद ऑल ऑफ यू, बिकॉज अगर ईद वगैरह कुछ मतलब मॉर्निंग में आई गेस होता है, वो हो जाएगा तो, है ना, मॉर्निंग में, तो फिर इवनिंग में यू कैन अटेंड द लेक्चर, ठीक है। Ma'am, anyways, if you put PDF or you put videos and all, no, so it is under like we come to know whatever is Yeah. missing. Surely. That I will do. And someday if I forget now, so please remind me in the next day or the day itself. You can text me, Yes, okay? ma'am. Yeah. चलो फिर शुरू हो जाते हैं नेक्स्ट। ये हुआ क्या तुम लोगों का भाई? प्लीज टेल मी नाउ, आई वांट आंसर फ्रॉम Ma'am, एवरीवन। lambda is minus x by y minus x by y. लैम्डा इज माइनस एक्स बाई वाई, माइनस और प्लस? Minus. प्लस मैम। हाँ हाँ, ध्यान से जरा देखो देखो, It अदर्स is ऑल्सो plus, रिप्लाई। plus it is. Ma'am, it is plus. प्लस या दिस प्लस इज प्लस गाइस, हाँ ये प्लस है, मतलब सेम ही है। तो मतलब ऐसा आया रहेगा आपका, लैम्डा माइनस एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो माइनस उस साइड जाएगा तो दैट विल बिकम प्लस, तो सेम आएगा, मतलब एक्स बाई वाई एंड एक्स बाई वाई। सो आई एम राइटिंग ओनली वंस बिकॉज द वैल्यू इज सेम, तो वाई टू राइट वाइस। ओके, so now what the same thing is that dy by dx plus x upon y equal to 0, so this will give you, अभी क्या होगा, y y के साथ जाएगा, x x के साथ, तो थोड़ा सा शॉर्टकट मार लेते हैं हम लोग। चलो नहीं मारते हैं, फिर बस समझेगा नहीं तो फायदा नहीं ना शॉर्टकट मारने का। ये y नहीं है गाइस, x है, हाँ, x dx, so this will be y square x square equal to c। ओके, ये मैंने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, लेट वही u को, तो यही एक तो वही आएगा जो यहाँ पे है एज इट इज। ओके, दूसरे को हमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या लेना है। u इक्वल टू मैंने लिया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप v इक्वल टू ले लो वाई स्क्वायर। जिस टाइप का आपका u आ रहा है ना फंक्शन, सिमिलरली यू विल कंसिडर द अदर फंक्शन एज वेल v। अब इसमें आप y करोगे तो थोड़ा वो मतलब कैंसिल वगैरह होने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। Since you have that liberty to choose the value of v, so you will choose either y square or x square, and later on you can also check for the Jacobian। so अगर मैं Jacobian इसका फाइंड करती हूँ u कॉमा v का विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा y, so क्या आएगा बताओ, x डे बाय u upon डे बाय y, डे बाय v upon डे बाय x, डे बाय v upon डे बाय y, and this will give you डे बाय u upon डे बाय x 2x, ये आएगा 2y, v का 0, इसका आएगा 2y। so this is equal to 4xy minus 0, so this is 4xy definitely, तो नॉन जीरो ही आएगा क्योंकि एक्स वाई नॉन जीरो ही होंगे, ऑब्वियसली बात है, अगर वही जीरो हो जाएंगे तो मेरा पूरा फंक्शन ही जीरो हो जाएगा फिर ना। तो दिस इज क्या, नॉन जीरो, कुछ नॉन जीरो मेरे पास आ रहा है, तो इट मींस आई कैन कंसिडर v एज वाई स्क्वायर। ओके, यू कैन कंसिडर एक्स स्क्वायर एज वेल, कभी आपको प्रैक्टिस करना है फुर्सत में तो यू कैन कंसिडर सम अदर टर्म, मतलब जस्ट टू वेरीफाई नो, so you can also consider that, and then also you will get the same answer. The only condition that your Jacobi should not be equal to 0, so that you can claim that your functions u and v are independent। okay, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है, अब वही पी क्यू आर, क्विकली राइट डाउन एंड क्विकली फाइंड अलोंग विद मी। पी इक्वल टू क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल यू, सो दिस विल बी del z upon del u। okay, so this is del z upon del, sorry, it is not u, it is x, del z upon del x upon del, oh, del z upon del u उल्टा हो गया, तो del z upon del u into del u upon del x plus del z upon del v into del v upon del x। okay, so now this will give you del z upon del u, del v upon del x कितना होगा, 2x होगा, because here is u and here is v, so plus del z upon del v, और x का तो टर्म नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो इससे एक और फायदा हमारा होता है, अगर आप माइनस कर रहे हो ना, what is your main intention, that you just make your solution very convenient to you, मतलब और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते थे, v एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उससे क्या होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा वो, तो एक ही टर्म रहेगा, तो आपका क्या होगा, देखो इस वाले में आपका मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आ रहा है, एक ही टर्म मिल रहा है इंस्टेड ऑफ टू टर्म्स, तो दैट विल यू नो मेक योर कैलकुलेशन अ लिटिल इजियर, दैट्स व्हाई। तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ मेरे पास क्या है, 2x डेबा z अपॉन डेबा u,
Here it is. It is what? Deba z upon deba x. So if I talk about only deba upon deba z, sorry, x na. So what you will take? Guys, mute yourself. Okay, ठीक है? Yeah. So are you okay with this? Now the next is Q. Q का वैल्यू कितना है? डेबा z अपॉन डेबा y. यही होता है Q. So it means डेबा z अपॉन डेबा u into डेबा u upon डेबा y plus डेबा z upon डेबा v into डेबा v upon डेबा y. Okay. So this will give you डेबा z upon डेबा u. डेबा u upon डेबा y is 2y plus डेबा z upon डेबा v and it is also 2y because इसको भी हमने y square ही consider किया था. So what you can do is 2y डेबा z upon डेबा u plus 2y डेबा z upon डेबा v. ये आ गया. So this would imply डेबा upon डेबा y क्या आएगा? 2y डेबा upon डेबा u plus डेबा upon डेबा v. I guess ये आना चाहिए. Okay, now go for RST quickly. RST या फिर हमें क्या क्या चाहिए वहां पे देखना है, वो मैंने देखा नहीं था इस बार because I told you to solve. तो R और S सब चाहिए क्या हमें? हाँ R. Oh God, this is going to be very lengthy, guys. Be ready for that. RST ही हो रहा है यहाँ पे, पूरा ही चाहिए. तो let's do this. PQ. P भी आया एंड Q भी आ गया. ठीक है, वो भी हो जाएगा. इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं एंड इसको इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 1 तो हमारा वही बेसिक वाली होती है. ठीक है, तो Q भी आ गया. अब क्या बचा मेरे पास? अब now I am having R. R is nothing but deba square z upon deba x square. So what I can write this? Deba upon deba x, deba z upon deba x. Okay, so deba upon deba x is अच्छा. इसको वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं ना, y to keep it as it is. Deba upon deba x is what you are having 2x deba z upon deba u. 2x deba अपॉन डेबा u और यहाँ पे आएगा 2x डेबा z अपॉन डेबा u. ये आएगा. अभी यहाँ पे ध्यान से देखना क्योंकि x भी है और डेबा z अपॉन डेबा u भी है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है. सो सी व्हाट यू आर गोइंग टू डू. सबसे पहले आप एक सेकेंड डेबा, इसको 1 मिनट के लिए ये रख दो. एक सेकेंड, एक काम करते हैं, डेबा अपॉन डेबा x ही रहने दो, है ना. सो व्हाट इट विल गिव मी, it is x square. Now what is the value of x? Just a minute. अच्छा, यही है सिर्फ, है ना. x का वैल्यू क्या है? डेबा x अपॉन डेबा u. तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? व्हाट वी कैन डू विद दिस? इट इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड गाइस. एनीवे, करना तो है. तो व्हाट वी कैन डू, इसको जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी ना, तो ये क्या होगा? डेबा x अपॉन डेबा x डेबा z अपॉन डेबा u, ये होगा, है ना.
एंड फिर देखो ये ना यूवी रूल लगाएंगे इसमें, यू इंटू वी वाला, क्योंकि ये भी एक्स का टर्म है और जेड भी बिलोंग करता, मतलब डिपेंड करता है एक्स एंड वाई पे, तो इसके लिए यहाँ पे यूवी रूल लगाना है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे रखा, प्लस फिर 2x ऐसे आएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब अंदर क्या आएगा देखो, डेबा अपॉन डेबा एक्स, यहाँ पे ध्यान से देखना, एंड डेबा जेड अपॉन डेबा यू, हियर इट इज। Can you like, are you clear with this? What I have done? What I have done that I have taken this deba upon deba x with x first of all. So this one and the other term remain as it is. Now I have taken 2x as it is here, and I took this one with the other derivative deba z upon deba u. Now see how to deal with this. ये तो हो जाएगा 1 आपका, तो यहाँ पे आपको मिलेगा deba z upon deba u plus 2x. Now what you will write this one? अब इसको ना फिर से आपको ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे, डेबा अपॉन डेबा यू, और अंदर आएगा आपका डेबा जेड अपॉन डेबा यू, और यहाँ पे आएगा डेबा यू अपॉन डेबा एक्स, क्योंकि एक्स और वाई का है ना फंक्शन। सो अगेन प्लस फिर क्या करना पड़ेगा, डेबा वी आएगा, यहाँ पे अगेन दैट होल फंक्शन, और यहाँ पे आएगा डेबा वी अपॉन डेबा एक्स, हियर इट इज। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, ये आपको पता होगा कि ये चेन रूल होता है, तो दिस कैन बी रिटर्न इन दिस वे, मतलब यू और वी के टर्म्स में ब्रेक कर दिया मैंने इसको, इस पूरे टर्म को। सो व्हाट यू विल डू टू, अभी तक आपको जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स थे आर एस टी, वो सब कांस्टेंट टर्म मिले थे, तो वो बहुत सिंपल होता है सॉल्व करना, बट अगर ऐसा कुछ मिल गया तो दैट इट विल बी डिफिकल्ट। प्लस 2x, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेबा अपॉन डेबा यू तो ऐसे ही रहेगा, या फिर इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, तो व्हाट यू विल हैव, डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा यू स्क्वायर इंटू डेबा यू अपॉन डेबा एक्स। क्या है, यू का वैल्यू क्या था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखना, और वी का है वाई स्क्वायर, तो मैं फिर से ऊपर नहीं आऊंगी। तो डेबा यू अपॉन डेबा एक्स हो जाएगा आपका 2x, प्लस ये दो टर्म को फिर से अगर साथ में ले लोगे तो यू विल गेट डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा यू डेबा वी ना, यू यू और ये वी और ये यू, हाँ, डेबा वी एंड डेबा यू, यहाँ पे आएगा आपका ये वाला डेबा वी एंड डेबा यू, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, दूसरा क्या है, डेबा वी अपॉन डेबा एक्स, वी में एक्स का टर्म ही नहीं था, आई गेस मैंने वाई स्क्वायर लिया था वी को, है ना, सो इट विल बिकम जीरो, हाँ थैंक गॉड वाई स्क्वायर लिया था जी, वो थोड़ा छोटा हो गया है। तो व्हाट आई विल हैव, डेबा जेड अपॉन डेबा यू प्लस 2x, अभी देखो ये 2x है, ये 2x है, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और सेकेंड टर्म तो जीरो हो गया, तो यहाँ पे कितना आया आपको 4x स्क्वायर डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा यू स्क्वायर, हियर इट इज दैट क्लियर टू ऑल? ये आपको आई आर की वैल्यू, लेट अस कॉल इक्वेशन नंबर 4, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4, ओके, तो दिस इज योर आर एंड देन एस, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसी के लिए जा रहा है, डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा एक्स डेबा वाई, ये होता है एक, तो इसको हम लिख सकते हैं डेबा अपॉन डेबा एक्स डेबा जेड अपॉन डेबा वाई। सो दिस इज डेबा अपॉन डेबा एक्स, कहाँ गया डेबा अपॉन डेबा एक्स, डेबा अपॉन डेबा एक्स फ्रॉम 2 इज 2x डेबा अपॉन डेबा यू, और दिस इज 2x डेबा अपॉन डेबा यू, या फिर रुको पहले y का वैल्यू पुट करें जिसे पहले किया था, ओके y का वैल्यू में तो वैसे भी कुछ नहीं आ रहा है, तो y का वैल्यू में देखो क्या है, 2y, इट इज 2y डेबा अपॉन डेबा यू प्लस डेबा अपॉन डेबा वी, हियर इट इज, ओके। तो जब इसको ना अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो बी अ लिटिल बिट कॉन्शियस कि कैसे करना है। हम्म 2x तो आगे है, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्रॉब्लम है इसको पहले एक साथ ऑपरेट कराएंगे u के साथ, इसके साथ, तो अगर यहाँ पे मैं ऑपरेट कराती हूँ तो आई विल हैव डेबा y अपॉन डेबा u, इजंट इट सो, तो बट इसको फिर से मुझे वैसे ही करना पड़ेगा, अगर इसको x ही रहने दो तो क्या होगा, हम्म 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 हम्म
y के टर्म्स में तो नहीं है, तो आई विल पुट y एज इट इज। रुको, इसका कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे। हाँ, थोड़ा सा ये है, बी पेशेंट, वी नीड टू सॉल्व दिस। इट इज टू, लेट मी कीप दिस एज इट इज, डेबा अपॉन डेबा एक्स, इसको ऐसे ही रहने दो। डेबा जेड अपॉन डेबा वाई की जगह वैल्यू पुट कर दो 2y डेबा अपॉन डेबा जेड अपॉन डेबा यू प्लस डेबा जेड अपॉन डेबा वी। आई थिंक यही था ना, यू अपॉन वी की जगह पे। हाँ, 2y था, और डेबा जेड अपॉन डेबा यू एंड डेबा जेड अपॉन डेबा वी ये था। ठीक है, तो ये 2y तो बाहर ले लेते हैं क्योंकि x से तो फ्री है, तो ये तो होने वाला नहीं है। मतलब अगर आप x के रिस्पेक्ट में किसी को इंटीग्रेट कर रहे हो, और y तो x एंड y क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म्स है ना, तो x का y से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो इट मींस y इज y विल बी ट्रीटिंग एज कांस्टेंट फॉर x, तो 2y बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास अभी क्या है, डेबा अपॉन डेबा x डेबा z अपॉन डेबा u प्लस डेबा z अपॉन डेबा v। ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि ये कैसा है। सो 2y विल रिमेन एज इट इज। इसको फिर से वही ब्रेक करेंगे गाइस। कैसे ब्रेक करेंगे, डेबा अपॉन डेबा u इंटू दिस होल टर्म डेबा z अपॉन डेबा u प्लस डेबा z अपॉन डेबा v, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबा u अपॉन डेबा x प्लस डेबा अपॉन डेबा v। अभी u और v ना ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं, डेबा v, और अंदर आएगा डेबा z अपॉन डेबा u डेबा z अपॉन डेबा v, और यहाँ पे आ जाएगा डेबा v अपॉन डेबा x। Here it is. Okay. So this 2y will remain as it is. Deba upon deba u will remain as it is. Deba u upon deba x कितना आ जाएगा, इससे मैं ना अंदर दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो आई विल हैव डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा u स्क्वायर प्लस डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा u डेबा v, और यहाँ पे डेबा u अपॉन डेबा x की जगह पे क्या आएगा, 2x आ जाएगा क्योंकि डेबा u की वैल्यू है आई थिंक x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा u डेबा v, ये आ गया, मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया इसको। ओके, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर ही क्यों रही हूँ, सी ये डेबा v अपॉन डेबा x का वैल्यू गाइस 0 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज 0, वाई टू मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि v को मैंने क्या लिया, 2y लिया, तो x के रिस्पेक्ट में तो उसका 0 आएगा। नाइस, तो अभी हो गया ऑलमोस्ट। तो क्या हो जाएगा, 2y ये है और 2x ये है, तो कितना हो जाएगा 4xy, और यहाँ पे डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा u स्क्वायर एंड डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा u डेबा v। हियर इट इज, ये आपका आया लास्ट क्या, s। अच्छा, लास्ट का अभी तो t भी है ना। ओ गॉड, दिस इज टू मच। t इक्वल टू क्या होता है, डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा v स्क्वायर, ओ y स्क्वायर सॉरी, है ना, ये होता है। तो डेबा अपॉन डेबा y डेबा z अपॉन डेबा y, सो दिस विल गिव यू डेबा अपॉन डेबा y क्या है, फ्रॉम 3 2y डेबा अपॉन डेबा u, इसकी वैल्यू ये है देखो, फ्रॉम 3 से क्या है 2y डेबा अपॉन डेबा u प्लस डेबा अपॉन डेबा v इंटू 2y डेबा अपॉन डेबा डेबा z अपॉन डेबा u एंड 2y डेबा z अपॉन डेबा v। ये आपकी इक्वेशन है y t की। ओके, तो ये भी और खतरनाक होते जाएगा अभी। ओके फाइन, आई हैव चोजन अ वेरी रॉन्ग क्वेश्चन आई फील नाउ। एनीवे, तो दिस इज द चैलेंज, वी हैव टू क्रैक दिस। तो बताओ कैसे करोगे। हाँ, अगेन अब यहाँ पे देखो, सिंस हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये 2y तो ऐसे ही आने वाला है। हम्म 2y will remain, okay okay fine fine, just a minute just a minute। ये फिर से मैंने गड़बड़ कर दिया। मैंने क्या गड़बड़ किया है, इसको ऐसे ही रखना चाहिए था मुझे, 2 ये डेबा अपॉन एक डेबा y को ऐसे रहने दो, एक को ओपन करो, मैंने अंदर वाला ओपन किया और बाहर वाला ऐसे रहने दिया, ठीक है। और ये क्यों किया, बिकॉज ये थोड़ा सा मैं अंदर डिफरेंशिएट करूंगी तो गायब भी हो जाएगा अभी, मतलब कुछ एलिमिनेट होएगा। तो देखो, नाउ आई एम हैविंग, अभी मैं y के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो यहाँ पे एक y का टर्म है, तो ये y को मैं कॉमन ही ले लेती हूँ, 2 मिनट, जो मैंने पहले लिखा था वैसे ही कर देती हूँ, 2y डेबा z अपॉन डेबा u प्लस डेबा z अपॉन डेबा v। ये आ गया गाइस, ठीक है। तो ये है मेरा मेन क्वेश्चन।
क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, ये आ गया। तो अब मैं क्या करूंगी, ये देखो एक है y का फंक्शन और ये z, तो y पे और x पे डिपेंड करता है, ये तो मेरे दो फंक्शंस आ गए। तो अभी यहाँ पे u इंटू वी वाला रूल लगाएंगे, 2, और ये क्या हो जाएगा, डेबा y अपॉन डेबा y, और बाकी का टर्म एज इट इज आ जाएगा, u प्लस डेबा z अपॉन डेबा v, है ना। और अगर दोनों को खोलने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नाउ दिस 2y विल रिमेन एज इट इज, एंड ये जो डेबा है ये इसके साथ आ जाएगा, डेबा z अपॉन डेबा u प्लस डेबा जेड अपॉन डेबा वी, समझा ना, ये आएगा। अब क्या करना है, नाउ इट विल बिकम अ लिटिल बिट ओके विद अस। नाउ 2, ये इसका वैल्यू तो आ गया 1, तो आपके पास क्या बचा, डेबा जेड अपॉन डेबा यू प्लस डेबा जेड अपॉन डेबा वी। ठीक है, क्योंकि आपका मेन टारगेट है एक्स वाई को हटा के यू वी जेड में आपका फंक्शन आना चाहिए, तो दैट इज द मेन टास्क यू हैव टू डू। उसके बाद है 2y, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, अच्छा हाँ, इसको फिर मुझे ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे, डेबा अपॉन डेबा यू डी यू प्लस डेबा जेड डेबा वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबा यू अपॉन डेबा वाई प्लस डेबा अपॉन डेबा वी डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी, और ये v है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल y itself। तो नाउ v को हमने 2y स्क्वायर लिया था, तो वी कैन पुट द वैल्यू, देखो इसकी वैल्यू डे बाय u अपॉन डे बाय y कितना है, 2y है, और डे बाय v अपॉन डे बाय y भी 2y है। तो व्हाट आई विल डू, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये 2y मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंड हियर व्हाट आई विल हैव, देखो गाइस एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से भी, एक मिनट, लेट मी टेल यू नीड अ लिटिल मोर फोकस, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। तो देखो है ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, आपको दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है, 2y। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को कॉमन ले लेती हूँ बाहर। ठीक है, तो ये एक 2y बाहर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो दूसरा 2y मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो इंटू ये 2y कॉमन ले लिया। ठीक है, अब अंदर मैं क्या करूंगी, इन ये इसको दोनों के साथ अंदर, और dv को भी, डेबा यू को भी अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो आई विल गेट 4 टर्म्स। तो क्या क्या होगा, डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा यू स्क्वायर प्लस डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा यू डेबा वी प्लस डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा यू डेबा वी प्लस डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा वी स्क्वायर, ये मुझे मिलेगा अंदर। ठीक है, सो व्हाट आई कैन राइट दिस 2, और यहाँ पे आएगा डेबा जेड अपॉन डेबा यू प्लस डेबा जेड अपॉन डेबा वी प्लस 2 मतलब 4y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा यू स्क्वायर प्लस ये 2 टाइम्स आएगा डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा यू डेबा वी, और प्लस क्या आ जाएगा, डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा वी स्क्वायर, ये आ गया। तो फाइनली मुझे टी की वैल्यू भी मिल गई है। यू ऑल आर लिसनिंग टू मी ना, सो तो नहीं गए सब लोग? हेलो, आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, ma'am, listen. Okay, fine, because it has become very very lengthy, so please be patient. तो but we are finally done with this. oh, नेक्स्ट टाइम ना ये बिल्कुल नहीं लूंगी, ये क्वेश्चन मैं अभी डिस्कार्ड कर दूंगी मैं इस क्वेश्चन को यहीं से। सो द मेन इक्वेशन, अभी वो मेन इक्वेशन है और भी बकवास है, एक बार दिखाती हूँ कहाँ गई वो। दिस इज द lengthiest equation we were having. Now I need to replace all the values to this. Oh god, guys, this is your homework you can do. उफ, नहीं नहीं बता रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, चलो इतना कर ले तो भी लास्ट में क्यों छोड़ना है ना, फालतू में तुम लोग क्रेडिट लेके जाओगे, हाँ हमने सॉल्व किया, मैम ने तो नहीं किया, ऐसे बोलोगे, तो बेटर कि लेट मी टेक द होल क्रेडिट। चलो, ओके, ओ माय गॉड, सी दिस क्वेश्चन कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। Okay, from equation number 1, actually although I did not call that equation 1, so you can consider equation 1 is generally जो भी हमें given रहता है उसी को हम equation 1 बोलते हैं। तो equation 1 क्या है guys, y square r minus 2xy s plus 1x y square upon x p, oh god, minus x square upon y, और ये है q इक्वल टू 0, मतलब पागल हो गए लोग, इतना कौन सिंप्लीफाई करता है भाई।
हाँ मैं एक काम करने वाली हूँ, मैं ये सब सिंप्लीफाई करके दे दूं क्या? अभी मैं लिखते रहूंगी ना तो पता नहीं कहाँ जाएगा ये क्वेश्चन। एक मिनट। हाँ, आर का वैल्यू, ओ गॉड, किसने नोट किया नहीं किया रहेगा, अभी वो सब मेरे को एक एक करके लिखना पड़ेगा यहाँ से। व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं यहाँ पे इतना स्पेस छोड़ती हूँ, सुनो, बेटर सेफर साइड क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ रही हूँ और मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूंगी, क्योंकि इतना लेंदी है, फिर सिंप्लीफाई करने में आधा घंटा निकल जाएगा, हम इसी क्वेश्चन में रह जाएंगे, ठीक है? तो सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आपको कुछ तो भी ऐसा आंसर मिलेगा, मतलब कुछ तो भी आंसर मिलेगा इन द सेंस, आपको या तो मिलेगा जेड स्क्वायर डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा वी स्क्वायर, या फिर क्या मिलेगा डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा यू स्क्वायर, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। आप पीडीएफ में देख लेना, मैं पूरा सिंप्लीफाई करके दिखा दूंगी, चाहिए तो थोड़ा और स्पेस छोड़ देती हूँ, क्योंकि काफी लेंदी हो गया और मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊंगी ना, अगला आधा घंटा भी उसी में चला जाएगा, तो देयर इज नो मीनिंग टू वेस्ट इतना लॉन्ग टाइम ऑन दिस। आर यू अग्री विद मी और नॉट? यू वांट मी टू सॉल्व राइट नाउ? Yes, ma'am. You want me to solve right now? No, ma'am, it is coming. Answer is coming. Yeah, it will definitely come. Why I'm skipping right now? Because it has already taken a lot of time. So let it be. वो cancel होके आता है, ऐसा आएगा for sure. तो मैं ना सीधे अगले उसमें switch करूँ, चलेगा ना? ये मैं आपके notes में attach कर दूंगी खुद solve करके, क्योंकि फिर ये अभी, Okay, ma'am. हाँ, वैल्यू पुट करके रखूंगी ना तो फिर इट विल टेक अनदर 15 to 20 मिनट्स, so let it be. I will do it and I will send it to you. और आप लोग भी solve करोगे, वो मतलब हो ही जाएगा, बट फिर भी मैं करके दे दूंगी, ठीक है? सो दैट्स इट। तो इट मींस आपको मेन चीज क्या याद रखनी है, पहले तो ऐसे बकवास क्वेश्चन अगर कहीं दिखा तो उसको अटेम्प्ट भी मत करना, ओके? और दूसरी बात, द मेन थिंग इज दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पार्शियल सॉरी this parabolic equation you will either get डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा बी स्क्वायर, और यू विल गेट, ये लास्ट में सिंप्लीफाई हो गया ना, सिर्फ उतना ही बचेगा आपके पास, और राइट हैंड साइड में कुछ टर्म आ जाएंगे तो यू कैन कीप ऑन द राइट हैंड साइड टू दैट, ओके? तो दैट्स इट। तो ये था आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब पीडी टू कैनोनिकल फॉर्म ऑफ किसका, विच वन वाज दैट, पैराबोलिक। नाउ कमिंग टुवर्ड्स लास्ट वाला बचा इलिप्टिक। अभी इलिप्टिक का कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना, वो तो और भी गंदा है, तो अभी देखो, अभी तुम बी रेडी विद दैट एज वेल, ओके? क्योंकि उसमें क्या आते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो रूट्स हैं, दे गोज टू इमेजिनरी लाइक कॉम्प्लेक्स में वो सब जाते हैं, तो फिर वो और भी होता है, बट ठीक है, एनीवे वी हैव टू डू, अगर है तो सिलेबस में क्या करेंगे, ठीक है? So now see what is the reducing an elliptic equation to its canonical form. ठीक है, तो इसमें भी सेम रहेगा, आपको पता है कि इलिप्टिकल के लिए क्या होता है, अगर आपको आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 है, अगर ये आपको इक्वेशन दिया है, तो आपका इलिप्टिकल में क्या आना चाहिए, एस स्क्वायर माइनस 4RT मस्ट बी लेस देन 0, देन ओनली यू विल से इट इज इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। नाउ यू विल टेक लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। सो आपको वहां पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती है, क्या मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे, तो dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक सेम है, बट अभी इनको सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, solving these two, what you will get, see, these two equations, you will get something like this, कोई फंक्शन मिलेगा x और y का, है ना, प्लस i कुछ फंक्शन मिलेगा अगेन x और y का, f2 इक्वल टू 0, 0 नहीं c1 बोलेंगे उसको, ठीक है? ये मिलेगा c1, एंड अगेन द सेम थिंग विल हैपन, लेकिन दूसरा क्या होगा, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं दे ऑकर इन कॉन्जुगेट, मतलब अगर एक आपको मतलब प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 i ऐसे मिलते हैं ना, आयोटा इस फॉर्म में मिलते हैं ना, तो दोनों क्या होते हैं, होते सेम है, बट एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो आपको यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, बस एक क्या होगा, बीच में प्लस होगा एंड माइनस होगा। आई गेटिंग मी? जैसे आपको ऐसा मिल गया,
लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 आपका इक्वेशन आया, तो लैम्डा इक्वल टू +-2 आया। तो ये +-2 से क्या होता है, रूट सेम होते हैं, ओनली साइंस डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट है दे ऑकर इन पेयर। आपने पढ़ा होगा थ्योरम की कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर्स इन पेयर। ओके, तो सेम ही होते हैं, एक कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के, दैट्स इट। तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, F1 F2 सेम ही होंगे, बट यहाँ पे एक प्लस होगा एक माइनस हो जाएगा, x, y की फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, C2 बोलेंगे, ठीक है। सो अब ये C1 और C2 में से क्या करोगे आप लोग, अभी आप लोग पहले इसमें अल्फा बीटा, क्योंकि आपको जनरली हम लोग लिखते क्या है, अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में लिखते हैं, कोई भी प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में, कोई भी कॉम्प्लेक्स उसको, है ना। तो मैं क्या करूंगी, अल्फा एंड बीटा आर न्यू रियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, independent variables such as, जो मेरा u है वो अल्फा प्लस आई बीटा आएगा, और v है वो अल्फा माइनस आई बीटा आएगा। मतलब जो ये रूट आए ना, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, F1 को मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या, मैं F1 को क्या ले रही हूँ, अल्फा, और F2 को क्या ले रही हूँ, बीटा। इट मीन्स ये, ठीक है, और बाकी सेम ही है। तो क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट आई एम टेकिंग, अल्फा इक्वल टू मैं ले रही हूँ F1 x, y, एंड बीटा इक्वल टू मैं ले रही हूँ F2 x, y, हियर इट इज, ठीक है। तो दैट्स इट। उसके बाद जो मुझे कैनोनिकल फॉर्म मिलेगी वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो। आपका मेन है, कभी कभी कैसा है ना, एमसीक्यू में अगर आपका आएगा तो मतलब उसमें ना आपको फॉर श्योर वो लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के उसमें देंगे एक, और बाकी सब ऐसे ही दे देंगे रैंडमली। तो अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना, तो आपको उतना लंबा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन दैट यू कैन मतलब ऑप्शन वाइज यू कैन गो थ्रू ऑप्शन वाइज। तो अब भी कुछ ऑप्शन देके आप ऐसे डिस्कार्ड कर सकते हो, अगर मतलब कि इसका ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं है स्टैंडर्ड, तो यू कैन डिस्कार्ड दैट, है ना। तो ऐसे ऐसे करके आपके पास फाइनल एक आंसर, तो डिस्कार्ड मतलब डिस्कार्डिंग द ऑप्शंस इज वन वे टू लाइक सॉल्व द लेंथी क्वेश्चंस। कैनोनिकल फॉर्म क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द कैनोनिकल फॉर्म, सी, यहाँ पे आपको u, अब सिंस यू हैव इंट्रोड्यूस्ड अल्फा और बीटा, तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे अल्फा और बीटा की फॉर्म में ही आता है, ठीक है। तो ये कैनोनिकल फॉर्म विल बी डेल स्क्वायर z अपॉन डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा अल्फा स्क्वायर, डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, हियर इट इज 0 नहीं, सॉरी, नॉट 0 ऑल द टाइम, कभी कभी मिल सकता है बट हमेशा नहीं। राइट हैंड साइड में आपके वही फंक्शन हो जाएंगे, किसके होंगे, अभी यहाँ पे uv को रिप्लेस कर दिया गया है अल्फा बीटा से, तो अल्फा बीटा z, डेबा z अपॉन डेबा अल्फा, और डेबा z अपॉन डेबा बीटा, बस हो गया। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ऑल थ्री स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, दैट्स इट, हियर इट इज। क्लियर एवरीवन, हैव यू रिटन दिस? Yes, ma'am. ओके, नाइस। सो कीपिंग अप दिस वन, अगर मतलब मेरी हैंड राइटिंग वैसी बकवास है, तो अगर कहीं पे नहीं समझ आए तो यू कैन आस्क मी, because a standard form should not be wrong. My main focus is on that. So it is deba square z upon deba alpha square plus deba square z upon deba beta square and equal to the remaining whole things. So these are the things which we can consider. So quickly coming to one example, and I'm hoping that at least इसका आज एक example कर लें और एक कल हो जाएगा, तो फिर हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर we are done with the canonical form and we can continue on next topic. Okay. So example 1, moving towards quickly, reduce the partial differential equation in canonical form. Same है, तो मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, obviously हम reducing कर रहे हैं तो reduce ही कर रहे होंगे, बाकी तो कुछ करेंगे नहीं, तो it is understood, common sense we can use here, s square minus 4rt। अब मैं क्या करूंगी, थोड़े शॉर्टकट्स लूंगी, मतलब ऐसे s की वैल्यू r की वैल्यू इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट आई विल डायरेक्टली गो, तो s 0 है, -4, r की वैल्यू 1 है, t की वैल्यू x स्क्वायर है, तो यू हैव गॉट -4x स्क्वायर। सो दिस विल बी, अभी देखो x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हर वैल्यू के लिए दिस विल बी पॉजिटिव, तो -4 इसको क्या कर देगा, नेगेटिव, तो ये एनीवे आपको हमेशा क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग दिस हियर। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज एलिप्टिक इक्वेशन, या फिर ये एलिप्स है, इट इज एलिप्स। ओके, सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वी are supposed to find the characteristic equation, that is r lambda square plus s lambda
प्लस टी इक्वल टू 0. दिस विल गिव यू लैम्डा स्क्वायर. एस वाला टर्म तो 0 है, तो सिर्फ टी वाला टर्म बचेगा विच इज एक्स स्क्वायर. ओके फाइन. ओके, तो इसका मतलब है जो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, फिर बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा. प्लस माइनस क्या आया, एक्स आई, इजंट इट? यस और नो? प्लस माइनस एक्स आई आएगा. तो लैम्डा इक्वल टू अगर प्लस माइनस एक्स आई आता है, सो व्हाट वी कैन डू इज, characteristic equation we can find. So this is again dy upon dx प्लस लैम्डा 1. तो लैम्डा 1 की जगह एक बार मैं एक्स आई लिखूंगी इक्वल टू 0 एंड एक बार मैं लिखूंगी माइनस एक्स आई, है ना. तो नाउ आई विल इंटीग्रेट दिस. ओके, नाउ ये x को यहाँ पे नहीं, मैं इसके साथ लेके जाऊंगी. दिस इज इक्वल टू 0 एंड dy माइनस एक्स आई dx इक्वल टू 0. Now I'll integrate both the side and what I will get, y plus I x square upon 2 equal to c1 and y minus I x square upon 2 equal to c2. ये आया, ठीक है. Clear everyone? Yes or no? तो बताओ अभी यहाँ पे आगे क्या है, आगे का क्या सीन है. ये तो आ गया. What next we are going to do? अभी हम u और v को कंसिडर करेंगे कि u v क्या लेना है, ठीक है. तो what you can take u and v. देखो u आप ले लोगे, पूरे टर्म को u लेते हैं ना हम लोग, तो हाँ पूरा टर्म u आएगा. बाद में फिर उसको अल्फा बीटा में कंसिडर करेंगे. हाँ एक्चुअली हमारा c1 क्या आता है, पूरा का पूरा u के बराबर. तो u इक्वल टू क्या लिया मैंने, y प्लस आई एक्स स्क्वायर बाई 2, ये ले लिया, है ना. लेट वो u इक्वल टू एंड v इक्वल टू क्या हो जाएगा. यहाँ पे तो कुछ हमें खुद से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, जो दिया है वही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग इक्वेशन मिलती है हमको इसके लिए, ठीक है. सो हियर इट इज. नाउ यू विल कंसिडर अल्फा एंड बीटा. नाउ टेल मी व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा हियर. बताओ क्या आएगा. अल्फा, रियल पार्ट को हम अल्फा लेंगे दैट इज y एंड इमेजिनरी पार्ट को बीटा लेंगे दैट इज x स्क्वायर बाई 2. इज दैट क्लियर और नॉट? yes ना. so it means your equation is reduced in u equal to आपका आ गया अल्फा प्लस आई बीटा एंड v इक्वल टू आपका आ गया अल्फा माइनस आई बीटा, है ना. v इक्वल टू आ गया अल्फा माइनस क्या आ गया आई बीटा. तो अभी मैं जैकोबी फाइंड करूंगी, जैकोबियन ऑफ अल्फा बीटा का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में. तो क्या आएगा, डेबा अल्फा अपॉन डेबा एक्स, डेबा अल्फा अपॉन डेबा वाई, डेबा बीटा अपॉन डेबा एक्स, डेबा बीटा अपॉन डेबा वाई. तो दिस इज डेबा अल्फा अपॉन डेबा एक्स, डेबा अल्फा. देखो अल्फा वाई के बराबर है तो एक्स का कोई टर्म ही नहीं, तो इट विल बिकम 0. डेबा बीटा अपॉन डेबा वाई मतलब 2x अपॉन एक्स दैट इज ओनली एक्स. तो कैन आई डायरेक्टली राइट वो एक्स हियर ना, इतना तो लिख सकते हैं शायद डायरेक्टली, बिकॉज यू आर एमएससी स्टूडेंट, तो यू कैन कंसिडर दिस वन. एंड डेबा बीटा अपॉन डेबा एक्स, बीटा क्या है मेरा, ओ एक सेकेंड एक सेकेंड, ये तो मैंने डेबा अल्फा अपॉन डेबा वाई है ना, तो ये 1 आएगा, नीचे आएगा x बीटा की जगह पे, और y वाला बीटा वाला 0 आएगा. तो यू विल हैव कितना, माइनस ऑफ x. तो माइनस ऑफ x मतलब ऑब्वियसली नॉन जीरो, एक्स वाई नॉन जीरो होंगे. अगर वही 0 हो जाएंगे तो मेरा पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा. तो मतलब क्या हो गया, जेकोबी अगर नॉन जीरो आ रही है तो इट मीन्स अल्फा बीटा क्या है, इंडिपेंडेंट है. अभी जो काम हम वहां पे u और v के साथ कर रहे थे, ये काम अल्फा बीटा के साथ करेंगे. अल्फा बीटा आर इंडिपेंडेंट. ओके, अब मेरा आ गया p. So what is my p? डेबा z अपॉन डेबा, जल्दी से कर लेते हैं इसको x. तो यहाँ पे क्या होगा, अभी देखो डेबा z, अभी x तो मतलब u वाला तो है नहीं, तो मतलब मुझे कैसे करना पड़ेगा, अल्फा बीटा में तोड़ना पड़ेगा इसको. तो क्या लिखूंगी मैं, डेबा z अपॉन डेबा अल्फा अपॉन डेबा x प्लस डेबा z अपॉन डेबा बीटा, डेबा into डेबा बीटा अपॉन डेबा x. As I already told you that
जो काम हम वहां पे u और v के साथ कर रहे थे, सेम थिंग वी विल डू हियर विद अल्फा एंड बीटा। तो देखो यहाँ पे डेबा z अपॉन डेबा अल्फा इंटू एक्स का वैल्यू, अल्फा क्या लिया है मैंने, अल्फा लिया y, तो x तो वहां है ही नहीं तो 0 आ जाएगा, प्लस डेबा z अपॉन डेबा बीटा, और यहाँ पे बीटा की जगह क्या आ गया, x आ गया। सो डेबा z अपॉन डेबा x इज नथिंग बट x into डेबा z upon डेबा बीटा, और if you only want this value, कौन सी वैल्यू, डेबा x वाली वैल्यू, so what you will have x डेबा अपॉन डेबा बीटा, ये आपको मिलता है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, या फिर जो भी है आपका लाइंड अप है जो भी इक्वेशन। सिमिलरली मैं क्या निकालूंगी, q, तो q क्या होता है, डेबा z अपॉन डेबा y, अगेन इसको ब्रेक करेंगे अल्फा बीटा की फॉर्म में, तो डेबा z अपॉन डेबा अल्फा इंटू डेबा अल्फा अपॉन डेबा y, प्लस डेबा z अपॉन डेबा बीटा इंटू डेबा बीटा अपॉन डेबा y, इजंट इट सो। तो अल्फा और बीटा का y के रिस्पेक्ट में, अल्फा क्या है, y है तो 1 आएगा, बीटा y है ही नहीं तो 0 आएगा। तो इसमें आपको अच्छा क्या होगा कि आपका एक एक टर्म एलिमिनेट हो जा रहा है, तो डेबा z अपॉन डेबा अल्फा, और इसकी जगह y है, y था ना अल्फा, हाँ y है, और ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि उसकी जगह क्या है, x है। सो दिस वुड इम्प्लाई डेबा z अपॉन डेबा y किसके बराबर हो गया, डेबा z अपॉन डेबा अल्फा के बराबर, और यू कैन से दैट डेबा अपॉन डेबा y इक्वल टू डेबा अपॉन डेबा अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अब क्या है नेक्स्ट, p q r, हमें उसमें क्या क्या चाहिए, r और s भी चाहिए क्या, r इक्वल टू डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा x स्क्वायर, और you can write डेबा अपॉन डेबा x एंड डेबा z अपॉन डेबा x। तो देखो डेबा z अपॉन डेबा x क्या है आपके पास, ये है, तो ये बाहर वाले को ऐसे रहने दो, जब भी आपके पास x का कोई टर्म है ना अंदर गाइस, तो आप बाहर वाले को ओपन नहीं करोगे पहले, तो इसको ऐसे रहने दो, है ना। तो इससे क्या होगा, अब इसमें u इंटू वी वाला रूल लगाओगे, तो एक बार क्या आएगा आपका डेबा x अपॉन डेबा x, यही आएगा क्योंकि x इंटू अंदर दूसरा टर्म है, इंटू दूसरा टर्म एज इट इज कॉपी कर दोगे, प्लस अभी x को एज इट इज कॉपी कर दोगे, तो ये टर्म इसके साथ मर्ज होके मतलब क्या देगा आपको, ओके नहीं इसको लिखना ही पड़ेगा ऐसे, बाद में उसको तोड़ना भी पड़ेगा इनफैक्ट। तो ये टर्म क्या होगा आपका, दूसरा क्या आ गया डेबा, हाँ ये x तो ऐसे ही आ गया, डेबा अपॉन डेबा x इंटू यहाँ पे आएगा डेबा z अपॉन डेबा बीटा, ये आ गया, है ना। सो व्हाट दिस विल गिव यू, एक सेकेंड, हाँ अभी इसमें थोड़ा सा फिर से हमें इसको अनदर उससे ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब कौन से टर्म में, ये वाला टर्म तो पहले वाले टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले में क्योंकि हमें इवेंचुअली बीटा, और ये तो 1 हो गया, तो मुझे ये क्या मिला, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस प्रॉब्लम है इसमें, एक तो ये x का टर्म आ रहा है, और दूसरा क्या है, चलो x वाले को तो मैं लास्ट में रिप्लेस कर दूंगी, अंदर x वाला हटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से, तो कैसे हटाऊंगी, डेबा अपॉन डेबा अल्फा, आर यू गेटिंग मी, डेबा z अपॉन डेबा बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेबा अल्फा अपॉन डेबा x, क्लियर, प्लस फिर मैं क्या लिखूंगी डेबा अपॉन डेबा बीटा, ये अंदर डेबा z अपॉन डेबा बीटा तो ऐसे रहेगा, तो ये जो डेबा बीटा यहाँ है उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये मैं करूंगी। सो नाउ यहाँ पे मेरे पास है डेबा z अपॉन डेबा बीटा प्लस x, ये तो ऐसे रहेगा, इसको मैं सीधे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो नाउ आई विल गेट डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा अल्फा डेबा बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, अल्फा को मैंने क्या लिया था, अल्फा को मैंने लिया था y, तो उसकी वैल्यू होगी 0, है ना, तो मतलब ये टर्म मेरा 0 आ गया, प्लस डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा बीटा स्क्वायर, बीटा अपॉन x की वैल्यू आ रही है ओनली, x स्क्वायर अपॉन 2 था ना तो सिर्फ x आएगा, सो हियर इट इज, सो इवेंचुअली यू आर हैविंग डेबा z अपॉन डेबा बीटा प्लस एक x ये है एक x ये है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर,
डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा बीटा स्क्वायर, इट इज आर का वैल्यू, दैट्स इट, क्लियर। तो आर का वैल्यू तो फाइनली मुझे छोटा सा मिल गया है। अब सिमिलरली टी आएगा, टी क्या होता है, क्योंकि एस तो नहीं है, अच्छा हो गया बच गए हम लोग, तो टी डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा बीटा स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर, so this can give you deba upon deba y, deba z upon deba y, deba z upon deba y क्या है गाइस, देखो deba upon deba z upon deba alpha, बहुत इजी है तो फटाफट हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ना, अगर आपके पास ये x वाला टर्म हो तो सी यहाँ पे ना ये x वाला टर्म था ना, तो इसके लिए प्रॉब्लम आई, सो अदरवाइज वो इजी होता है। अगर आपके पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ना, तो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व, बट इफ यू आर हैविंग सम वेरिएबल देन इट विल बिकम डिफिकल्ट। इंटीग्रेशन में, सॉरी डिफरेंशिएशन में डिफिकल्ट होगा, पहले डिफिकल्ट होगा, लेटर ऑन मतलब एवरी टाइम इट विल बिकम डिफिकल्ट। जैसे इस वाले में देखो, यू कैन रिप्लेस इट बाय क्या है, अल्फा था ना, हाँ y की जगह अल्फा है, तो यू विल रिप्लेस बाय डेबा अपॉन डेबा अल्फा को इससे कर दोगे अल्फा को। नाउ सी हाउ इजीली यू गॉट द आंसर, बिकॉज इसमें कोई आपका वेरिएबल नहीं था, तो इट इजीली गॉट सॉल्व, ठीक है। तो t आ गया, r आ गया, तो व्हाट वाज द इक्वेशन गाइस, आई थिंक इक्वेशन 1 वाज r प्लस s x स्क्वायर t इक्वल टू 0, so दिस विल गिव यू, r की वैल्यू है आपको डेबा z अपॉन डेबा बीटा प्लस एक्स स्क्वायर डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा बीटा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू है डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ सी यू कैन सी दैट यू आर हैविंग ऑल द टर्म्स अल्फा बीटा दिस वन, बट ये एक्स स्क्वायर आपको क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये एक्स स्क्वायर को आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहने दो, प्लस एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन ले रही हूँ, तो अंदर हो जाएगा डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा अल्फा स्क्वायर को पहले लिख लेती हूँ, एंड डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा बीटा स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ठीक है, क्योंकि ये सारे टर्म्स ना मुझे लेफ्ट राइट हैंड साइड में चाहिए अपार्ट फ्रॉम अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, तो इसको मैं यहाँ पे ले जाके क्या लिख देती हूँ, माइनस डेबा जेड अपॉन डेबा बीटा, मैंने इसको वहां पे लेके गई। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर को इससे रिप्लेस करो, नाउ क्विकली टेल मी हाउ टू रिप्लेस दिस एक्स स्क्वायर in terms of alpha and beta, जल्दी, what is like x square, हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया था, you will come to this one जहाँ पे हमने कंसिडर किया था, जब मैंने बीटा को x square upon 2 लिया, तो it means I can replace this x square by what, 2 beta, can I do this or not, because I don't want x and y in my final answer, simple है, क्योंकि वो मेरे को कैनोनिकल फॉर्म चाहिए, तो वहां पे मुझे x y चाहिए ही नहीं, तो फिर उसे अगर वो आ गया समहाउ, तो आई विल हैव टू एलिमिनेट दैट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूंगी मैं, 2 बीटा, ठीक है, फ्रॉम, अगर मैंने इसको कुछ इक्वेशन दिया था, आई थिंक नहीं दिया था, बट आप लिख देना फ्रॉम दैट द फर्स्ट वन जहाँ पे हमने इसको कंसिडर किया था, एंड डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा अल्फा स्क्वायर डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेबा जेड अपॉन डेबा बीटा, ये है, ओके। तो नाउ मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखा होगा अपनी नोटबुक में, कंपेयर कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ इतना ही चाहिए मुझे, तो मैं क्या लिखूंगी, डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा अल्फा स्क्वायर डेबा स्क्वायर जेड अपॉन डेबा बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 बीटा डेबा जेड अपॉन डेबा बीटा, तो क्या आ गया, ये आपका फंक्शन है किसका, अल्फा बीटा जेड डेबा जेड अपॉन डेबा अल्फा डेबा जेड अपॉन डेबा बीटा, यही था ना आपका फॉर्म स्टैंडर्ड वाला, है ना, तो यू हैव गॉट द फॉर्म, सिंपल। यहाँ पे क्या था, डेबा बीटा स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ दीज ऑल टर्म्स, ये आ गया, है ना, तो ये आपका था फॉर्म, और ये जो आपका आंसर है वो भी सेम फॉर्म में आया है, तो इट मींस दिस इज योर कौन सा वाला, इलिप्स का कैनोनिकल फॉर्म। इज दैट क्लियर एवरीवन, थोड़ी दिमाग मतलब की दही तो हुई रही आज के लेक्चर में, बट एनी, क्योंकि इट वाज क्वाइट लेंदी, बट ठीक है, मतलब व्हाट डू यू फील, मतलब इजी, इट इज लाइक काइंड ऑफ ओके ओके, मतलब लेंदी है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू अंडरस्टूड और नॉट, टेल मी, समझ में आया क्या, स्टेप्स कैसे करना है, किसी को नहीं समझ Yes, आया, ma'am. ओके,
चलो अच्छा है। सी डेफिनेटली इन दिस द कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्जन वाला, इसमें स्टेप्स थोड़े बड़े हैं, अदरवाइज यू कैन इजीली डू दिस। और हाँ मतलब अगर प्रॉब्लम कब आती है, जब भी वेरिएबल वाला आपको टर्म आ जाए तो वहां पे प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज इट इज ओके। सो जो आपके कोएफिशिएंट्स हैं, इफ दे आर कांस्टेंट देन यू आर गुड टू गो, अदरवाइज अ लिटिल बिट मतलब आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन में ध्यान रखना पड़ेगा कि पार्शियल डेरिवेटिव में क्या क्या करना है। दैट्स इट। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था। अगर चाहिए तो एक और मैं इलिप्ट का, क्योंकि दो दो क्वेश्चन तीनों पे मैं करा देती हूँ जैसे, तो इलिप्स में भी एक और मैं कल करा दूंगी। अदरवाइज फिर वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, ठीक है कि नहीं? ओके मैम। ठीक है, चलो फिर ये आप लोग कर लेना, बाकी आई विल पुट इन द चैट this one the things. Let me like today I will try to put everything in Eclipse actually, and that also actually required some time and which I'm not having nowadays, but yeah definitely I'll try to put in Eclipse, otherwise Ma'am, you're actually, putting in Drive also. yeah I'll put in Drive. I think वही का लिंक मुझे Eclipse में शेयर करना पड़ेगा, तो सेम ही चीज है ना वो, तो ओके हाँ। वो ड्राइव वाला ही लिंक में शेयर करूंगी हर उसका, तो यू कैन गो थ्रू दैट। ठीक है, एंड द पीडीएफ आई विल डेफिनेटली गोइंग टू शेयर टुडे इटसेल्फ। अच्छा फर्स्ट से ही नहीं हुआ है ना, तो ठीक है मैं इक्लिप्स पे कर देती हूँ सीधे, है ना? ओके, तो यू जस्ट डू दिस वन एंड दैट्स इट। चलो कल मिलते हैं फिर, कल शाम को, और सेम चीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दी फर्स्ट 2-3 वीक्स में अगर थोड़ा सिलेबस हो गया, देन लेटर ऑन आई वॉन्ट बी, आई थिंक आई एम नॉट able to take the lectures in the last 2 weeks, so that's why I'm trying to keep the lectures over there। और अभी ठीक है, आपका आई थिंक सिर्फ एक साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी वाला कुछ चल रहा है ना, जो नीरजा मैम लेती है। यस मैम। हाँ तो कैसा, तो अभी फिलहाल 2 हैं, तो बाकी के नहीं सब्जेक्ट चालू है ना अभी तक का? नहीं मैम। अभी नहीं हुए ना? हाँ तो फिर ठीक है, तो एटलीस्ट 2 आपका सब्जेक्ट अभी हो गए, तो आप इनको साइमल्टेनियसली मतलब आप रिविजन करो और इसको वाइंड अप कर लो 2 सब्जेक्ट, एंड लेटर ऑन आल्सो सी सम अदर अलजेब्रा इज देयर आई गेस, और सम अदर चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स, या फिर कॉन्सेप्ट टोपोलॉजी आई थिंक, जो भी है तो वो आप बाद में कंप्लीट करोगे तो ठीक है। मतलब शुरू अभी वैसे भी 2-2 लेक्चर, तो ज्यादा आपके पास लोड है नहीं। ओके चलो बाय गाइस, सी यू टुमारो। ओके मैम, थैंक यू। ओके बाय गाइस।